Good evening, everyone. We're just going to wait for a minute for everybody to join in, and then we'll start with our today's episode. Okay. Welcome to the fourth episode of The Frontliners, an interactive live series where prominent people leading the management of COVID 19 share factual and relevant information about the pandemic. The civic administration has been playing an indisputable role in our daily lives these past few months. Entrusted with the Herculean task of running the city with more than 32 lakh people living within its boundaries amidst the widespread scare of the pandemic. And hence, in our today's episode, we're going to be in conversation with IAS officer Rubal Agarwal, who has been spearheading Pune's COVID management and administration. Rubal Agarwal presently holds the position of Additional Municipal Commissioner at Pune Municipal Corporation and having additional charge of Chief Executive Officer of Pune Smart City Development Corporation. She's been working in the state of Maharashtra since 2008 and has served across various cities of Maharashtra. She has served as a district collector of Ahmednagar and Jalgaon, and she was a CEO of Sri Sai Baba Sansthan Trust at Shirdi before joining the municipal corporation in Pune. Presently, her main responsibilities are to plan, implement, and manage basic civic services for the citizens like health, education, gardens, and other areas like property tax, finance, accounts, and information technology. She has various accolades to her name, including Mahatma Gandhi Peace Award in 2015 and the Best Collected Award in 2016 under Beti Bachao Beti Padhao campaign, and in 2017 Best Collected Award by Government of Maharashtra. Under her guidance, Pune City won Smart City Digital Payment Award in 2018. She has been instrumental in the fight against COVID 19 by managing city's administration and facilitating best possible support to all the departments working on the front line of COVID 19 management. So, without any further delay, let's welcome. Hello, ma'am. Thank you so much for So, joining us today and taking the time out. good evening. Thank you. Thanks Okay. to give like a very big introduction. It's all our pleasure, ma'am, that you are here today. So, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट योर रोल इन मैनेजमेंट ऑफ द करंट सिचुएशन? हम लोग को बहुत ज्यादा पता नहीं होता कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता क्या है. सो फॉर ऑल आवर ऑडियंस प्लीज गिव अस अ बिट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट 9 मार्च मुझे अभी भी याद है। होली का दिन था और 9 मार्च को मुझे कॉल आया। हम जनवरी से ही इसकी तैयारी कर रहे थे और नायडू हॉस्पिटल रेडी था विथ 6 बेड। आई एम टेलिंग यू विथ 6 बेड वी आर रेडी एंड इट. वी आर we think we are at like very comfortable zone. Don't worry, and we have enough beds in Pune. 9 मार्च का दिन है जब मुझे कॉल आया एनआईवी से कि 2 पॉजिटिव आए हैं पूना के अंदर। देन इमिडिएटली एवरीथिंग चेंज। वी डोंट नो व्हाट टू डू। आईसीएमआर के गाइडलाइंस क्या है, कोविड की क्या गाइडलाइंस है, व्हाट आर द एसओपी, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू फॉलो, वी डोंट नो एनीथिंग रियली। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं पता था कि इस टाइप का डिज़ास्टर आ रहा है जिसका कोई गाइडलाइन नहीं है। हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई है एकेडमी में, मसूरी एकेडमी में, आईएएस ट्रेनिंग में, हमारे सारे एग्ज़ाम्स में, उसमें हर टाइप के डिज़ास्टर आए हैं, लेकिन हेल्थ डिज़ास्टर कभी भी नहीं आया। ट्रू ट्रू. नेचुरल फ्लड है, भूकंप है, इस टाइप के, इवन टंचे ये जो महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है, वो सब हम्म. टाइप का डिजास्टर हम लोगों ने देखा है। उसको कैसे हैंडल करना है ये सीखा है और उसको उस पीरियड को कैसे फेस करना है। लेकिन ये जो डिज़ास्टर था वो ऑल टुगेदर डिफरेंट था। सब लोग रोज़ एक नई चीज़ बताते थे, रोज़ मॉर्निंग में एक नया ईमेल आता था, रात तक उसके अगेंस्ट में ईमेल आता था। देन स्टेट गवर्नमेंट निकालते थे एक एसओपी, देन सेंट्रल गवर्नमेंट का एसओपी। और उस फेज़ में जब हमने नायडू में 6 बेड शुरू करा तो हमारा जो था ये तो सारा स्टडी करना ही था, कोविड मैनेजमेंट को कैसे टैकल करना है। साथ में ही अपना जो पुणे का सिटीजन्स है उसके अंदर इसको कैसे हमें जो खौफ है कोविड का वो कम ट्रू. रहना चाहिए, अवेयरनेस पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। लेकिन आई डोंट नो अभी का जो सिनेरियो देखते हुए
इतने बिग नंबर में पॉजिटिव आ रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ मैनेज किया कि नहीं किया, आई कांट से एनीथिंग। सो मुझे तो ये भी लग रहा है कि जैसा आपने बताया कि मैं फ्रंट लाइनर्स में हूँ, मुझे उसके अंदर भी कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि जो भी नहीं मैम, जो कुछ आप लोग ने किया इसके वजह से ये कंडीशन है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वे वर्स देन दिस। तो फॉर श्योर क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू वर्किंग एट द फ्रंट लाइन फॉर श्योर, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वे वर्स देन दिस। मे बी सो शुरुआत में जब ये, जैसे आपने बोला कि किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था, किसी को भी पता नहीं था करना क्या है। सो इन सर्टेन सिचुएशंस इनिशियल डेज में पुणे सिटी का द होल मैनेजमेंट, व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन? फर्स्ट तो जो मैंने बताया कि इसकी कोई एसओपीज नहीं थी, और जो हमारी टीम शुरू हुई थी 9 मार्च को, उसमें शायद अब मैं ही रह गई हूँ। कलेक्टर चेंज हो गए, म्यूनसिपल कमिश्नर चेंज हो गए, राइट। डिविजनल कमिश्नर चेंज हो गए, सब चेंज हो गए, अभी मैं ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और पॉइंट ये है कि जो चैलेंज हमने फेस किया है वो है मेडिकेशन, मतलब व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रू ट्रू। बेड्स अवेलेबल कर देना। नायडू में हम लोगों ने 6 बेड को 100 बेड में जब कन्वर्ट किया था, तो हमें लग रहा था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 100 बेड इज इनफ। देन मैंने 10 हॉस्पिटल्स के साथ एमओयू किया, हम्म। 1000 बेड्स हम लोगों ने ऐड किए। सो लगा कि इट्स इनफ। देन 10,000 सीसीसी बेड्स ऐड करे। राइट। बात तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ बात करके उनको कन्विंस करके कि आपको कोविड नॉन कोविड पेशेंट दोनों के लिए बाइफरकेशन करके, आइसोलेशन करके बेड्स अवेलेबल करा के देने होंगे। ये सारा करते करते हम आज यहाँ पर आए हैं कि पूना में बेड्स हैं, एम्पल नंबर में बेड्स है। टेस्टिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा पूना में हो रही है। लास्ट 2 मंथ से पीएमसी की टेस्टिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज 7 to 8,000 पूना की है, और पुणे डिस्ट्रिक्ट की 12 to 13,000 है। हाँ। और इसी का रीज़न है कि अपने पॉजिटिव केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन 80% रिकवरी रेट है। ओनली 2 to 5% है जिनको ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है, और ओनली 1% है जिनको आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़रूरत है। लेकिन आई डोंट नो, इतनी अवेयर सोसाइटी है। पूना इज़ फेमस फॉर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग सिविक सोसाइटी एंड। ट्रू बट ट्रू। भी आप मार्केट में निकलिए, कल मंडी का हालत देखिए। गणपति महोत्सव के वक्त इतना ज़्यादा क्राउड है कि हम लोगों ने कितना भी टेस्टिंग किया, कितना भी बेड्स अरेंज किया, वो सब मुझे नहीं लगता कि उसका कोई यूज़ होगा, क्योंकि वो सब 30% है। वेरी ट्रू। 70% पुणे के सिटीजन्स के ऊपर है कि वो कोविड को कैसे लेते हैं। हमारा ये जो बिल्कुल। सारा है, सारा मैनेजमेंट है, वो 30% है, और 70% पूरा पुणे के सिटीजन्स पे डिपेंड है। सो मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कल 2000 पॉजिटिव केसेस थे। सो आई कांट से एनीथिंग। एंड वेरी ट्रू कि एडमिनिस्ट्रेशन जितना चाहे कर ले, हर एक सिटीजन की एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स हिज फेलो सिटीजन एंड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, कि वो खुद रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे सो दैट उनके वजह से और ज्यादा तकलीफ नहीं बढ़े ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी ट्रू। सो जब ये शुरुआत हो, जैसे आपने बोला कि जिस 6 बेड्स अवेलेबल थे, एंड वहां से जाके आज एक वीक बैक सीओईपी पे इतना बड़ा सीसीसी चालू हुआ है। सो वो प्रोसेस कैसा था, गोइंग फ्रॉम वन जस्ट वन मेडिकल सेंटर विच वाज इक्विप्ड टू टॉकिंग टू ऑल दीज हॉस्पिटल्स, और इनको कन्विंस करके उनको हॉस्पिटल के बेड्स देने के लिए कन्विंस करना, हाउ वाज दैट जर्नी? ये बहुत टफ जर्नी थी, और डिफरेंट जर्नी थी, क्योंकि पेंडेमिक एक्ट अभी है। पेंडेमिक एक्ट में हम लोगों को कोई से भी ऑर्डर निकाल के किसी भी मतलब हॉस्पिटल के लिए कि आपके हम 80% बेड्स लेंगे कोविड के लिए, वो एक पार्ट है। लेकिन इसी के दौरान उस हॉस्पिटल्स की भी बहुत प्रॉब्लम होती है जो सामने वाला हॉस्पिटल है, क्योंकि उनके हेल्थ केयर वर्कर काम करने को तैयार नहीं होते हैं। उनके दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके जो रेगुलर पेशेंट्स आते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है, नॉन कोविड पेशेंट्स की प्रॉब्लम है। इवन अभी रेनी सीजन में एनी हाउ 20% अपने पेशेंट्स इंक्रीज होते हैं, लाइक ट्रू एवरेज ट्रू। हमारा है। तो अगस्त, जुलाई अगस्त में 20% वैसे इंक्रीज होते हैं, तो वो एक टेंशन है। लास्ट 6 मंथ से जो अपना प्लान्ड सर्जरी है वो सब बंद है, उसके लिए कॉल्स आ रहे हैं हमें
इन सबको मैनेज करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, लेकिन ये है पूना के जो अपने सारे हॉस्पिटल्स ने हमें इसमें सपोर्ट किया है। इसकी वजह से अभी हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं कि सीओईपी का जंबो हमारा डीसीएच स्टार्ट हो गया है। मगर स्टेडियम में जो पीसीएमसी में है, वो एक जंबो डीसीएच स्टार्ट हो गया है लास्ट वीक ही। और हमारा जो पीएमसी का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है बानेर में, वो भी हम्म। फ्राइडे को ने उसका इनॉग्रेशन किया है और नेक्स्ट 2-3 डेज़ में वो भी स्टार्ट होगा। सो आई अभी मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी बेड्स की। राइट। ले, लेकिन इतने बेड्स भी मुझे नहीं लगता इनफ है जिस हिसाब से हम लोग सब बिहेव कर रहे हैं। सो मेरा वेरी अभी ट्रू। मैनेजमेंट का व्यू चेंज हो गया है। ट्रू। मुझे नहीं ट्रू। लगता अभी आप लोगों का सबसे बड़ा रोल है अवेयरनेस करने के लिए, आईसी करने के लिए, कन्विंस करने के लिए। आप लोग डॉक्टर्स ही है जो कन्विंस कर सकते हैं। ट्रू। किसी को भी कोविड से डर रह गया है। एंड इसीलिए फॉर दैट अवेयरनेस एंड वी शुड डू आवर बिट, इसीलिए हमने ये फ्रंटलाइनर सीरीज चालू किया एंड थ्रू हॉस्पिटल्स, थ्रू आवर पेशेंट्स, जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके थ्रू वी आर ट्राइंग टू डू आवर बिट टू क्रिएट अवेयरनेस। बट जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं, बिजनेसेस चालू हो रहे हैं, सब कुछ सो अनलॉक जैसे फेज वाइज हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट स्टेप्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठा रहा है सो दैट अनलॉक, नाउ वी आर इन अनलॉक फेज, तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम ना बढ़े, इसके लिए व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकिंग? एसेंशियल सर्विसेज के लिए और आपके जो बिजनेस के लिए, आपके वर्क के लिए आप निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो बिल्कुल। मेन है तो जो एसेंशियल नहीं है उसके लिए आप बाहर निकल रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो रोज जाते हैं ग्रोसरी की शॉप पे क्योंकि उनको बाहर निकलने की आदत है। बिल्कुल। रोज ऐसे लोग हमें सामने आ रहे हैं कि कार्ड्स खेल रहे हैं पार्किंग में, तो पूरी पूरी सोसाइटी पॉजिटिव हो जाती है। मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे जिसमें बच्चों ने और ये जो यंग जनरेशन के सो कॉल्ड स्टूडेंट्स जो स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, वो कार्ड्स खेल रहे हैं और उसके बाद पूरी की पूरी सोसाइटी पॉजिटिव हो रही है। बाप रे। डेली वॉकिंग के लिए, अब मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि मैं वॉकिंग के अगेंस्ट हूँ, लेकिन वॉकिंग करते हुए कोई भी, एक तो उसके अंदर भी बहुत कंट्रोवर्सी है वॉकिंग करते वक्त मास्क पहनना है कि नहीं। लेकिन आप अपने प्रीमाइसेस में करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे वॉकिंग कर रहे हैं, देन उसके अंदर जो आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए। आई विल नॉट से सोशल डिस्टेंसिंग, बट फिजिकल डिस्टेंसिंग डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए। ये सब नहीं हो रहा है। सो अनलॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो नॉन एसेंशियल आइटम के लिए और नॉन एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर निकल रहे हैं उसकी। हम्म। ट्रू। ट्रू। वेरी ट्रू। सो अभी ये सवाल मेरे भी दिमाग में, काफी लोगों के दिमाग में, कि राइट नाउ अगर एक पेशेंट पॉजिटिव निकलता है तो उसका जो कॉन्टैक्ट मैपिंग किया जाता है एंड उसके पहला सिम्टम आने से पॉजिटिव टेस्ट होने तक जो पीरियड में अलग अलग लोगों से वो पॉजिटिव पेशेंट मिल चुका होगा, तो वो लोगों के साथ लाइक व्हाट इज द प्रोसेस टू हैंडल दोज पीपल और टू कंटेन इट सो और ज्यादा स्प्रेड नहीं हो, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है अभी? इसके अंदर हम लोग देखेंगे 80% जो अपने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, 70% वो पॉजिटिव के क्लोज कॉन्टेक्ट से आ रहे हैं। उनके फैमिली मेंबर, उनके वेरी फ्रेंड्स ट्रू। वो रोज रहते हैं, वही आ रहा है। अभी मैं पीएमसी का एग्जांपल देती हूँ कि हमारी बिल्डिंग में 50 पॉजिटिव आए हैं। एक एडिशनल कमिश्नर जो मेरा कलीग है वो लास्ट वीक पॉजिटिव आया था, लेकिन स्टिल मैं पॉजिटिव नहीं आई हूँ। मैंने टेस्ट कराया था और मैं डेली बाहर जा रही हूँ, मैं डेली विजिट कर रही हूँ, मैं डेली हॉस्पिटल जा रही हूँ, बिकॉज मैं बेसिक हाइजीन फॉलो कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं फ्यूचर में नहीं होंगी, हो सकता है फ्यूचर में हो सकती हूँ, बिल्कुल। तो भी वायरल कर दे कि उन्होंने बोला था कि वो फॉलो कर रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें वायरल होती है। वेरी ट्रू। लेकिन अगर आप आपका बेसिक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क यूज़ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें प्रॉब्लम है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में फैमिली मेंबर्स ही पॉजिटिव आ रहे हैं और वो एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि आप घर पे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर सकते हैं और बहुत टफ है घर में मास्क पहन के रहना, वो कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन ये अच्छा है कि अराउंड फैमिली मेंबर्स के जब हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो 90% फैमिली मेंबर्स में जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो असिम्टोमेटिक है। राइट। सो वो ज़्यादा पेनफुल नहीं है। पेनफुल है हम्म। जो इनसे 24 आवर, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रैप देकर भी बाहर घूमते हैं। मतलब राइट। ये
आपको फॉलो करना चाहिए कि अगर आपको सिम्टम है और आपने स्वैब दिया है, तो उसके बाद एटलीस्ट आप आइसोलेट होकर आपके घर पे रहिए। आप अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं है, तो एटलीस्ट आप होम आइसोलेट होइए। ये एक बेसिक चीज़ है, अगर लोगों ने फॉलो करा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगा। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी अपना पूना का अराउंड 12% है, जो अभी हम्म, 15% तक लेकर जाना है, वो बहुत अभी भी कम है, लेकिन क्योंकि बिग नंबर है अपने यहाँ पे डेली पॉजिटिव आने बिल्कुल। का, मल्टीप्लिकेशन विद 10, दैट इज वेरी बिग नंबर ऑफ टेस्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। राइट नाउ पूना में जस्ट सो आवर व्यूअर अंडरस्टैंड्स कि एडमिनिस्ट्रेशन ने किस लेवल पे जाके प्रिपरेशन किया है एंड डेवलप किया है पूरे कोविड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को, लाइक व्हाट इज द नंबर ऑफ कोविड बेड्स अवेलेबल राइट नाउ, ऑक्सीजन असिस्टेड होंगे या फिर वेंटिलेटेड बेड्स होंगे, बिकॉज इनिशियली आई रिमेम्बर कि वेंटिलेटर्स की भी बहुत कमी थी जो कि अभी काफी हद तक बढ़ गया है। सो हाउ हाउ लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ बेड्स डू वी हैव राइट नाउ? हमारा सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर मैं आपको लाइव भी दिखा सकती हूँ कि कितने बेड्स हैं। वाओ। अपना सिंगल डैशबोर्ड है, उसमें अराउंड 19,800 बेड्स हम लोगों ने कोविड के लिए डेडिकेट किया है। एंड हम्म, दिस डैशबोर्ड इज अवेलेबल पब्लिकली, लाइक एनीबडी कैन गो एंड check this, what the number of oxygen beds are available, ventilator bed, ICU bed. Right now our position is very good. There is हम्म, no issue about uh, scarcity of beds as such. राइट। But now again there is problem of oxygen supply. Now we have to think of that. We planned so many green corridors for oxygen suppliers from Mumbai हम्म, to Pune, एंड डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। अभी बेड्स का प्रॉब्लम नहीं है तो मेडिसिन की प्रॉब्लम आ रही है। डेली एक आता है कि आपको वो इंजेक्शन नहीं है, टोसिलुजुमैब जो बहुत ही फेमस हो गया है, उसके लिए रोज हमारे पास रिक्वेस्ट आता है। अभी गवर्नमेंट ने कल बोला है कि दैट इज नॉट रिकमेंडेड मेडिसिन फॉर दिस कोविड। ओके। Yes, yesterday only government issued that, but हम्म, still number of hospital and doctors prescribing that. So again, this is this type of problem we are facing. राइट कि जितने नंबर्स बढ़ते जाएंगे उतना शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, ये और एक प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। वेरी ट्रू। सीसीसीज एज अ कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे पूना में हो या फिर महाराष्ट्र में हो, हम काफी अच्छी तरह पे और काफी बड़े लेवल पे कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस में सीसीसीज के बारे में है नहीं, बट द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट वी हैव, हमें ऐसे सेंटर्स बनाने की जरूरत पड़ी। तो फॉर आवर ऑडियंस कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट कि सीसीसीज एग्जैक्टली है क्या एंड उनका पूरे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में क्या रोल है? कोविड के सेंटर में हम लोगों ने स्पेसिफिकली जो अपने स्लम्स है या हम्म, पॉपुलेटेड एरिया है जिनके पास अपने इंडिपेंडेंट टॉयलेट्स नहीं है, उस सब एरिया के असिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स थे, कोविड पेशेंट्स, उनको हम लोगों ने रखा था। राइट। बेसिकली सीसीसी हम लोगों ने जो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, और पूना इज फेमस फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। हम लोगों ने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हॉस्टल लेकर उसको सीसीसी में कन्वर्ट किया, राइट। क्योंकि जस्ट क्योंकि सीसीसी में असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, उनको रखना है, अच्छा खाना देना है, मल्टीविटामिन्स देना है, 2-3 टाइम्स उनका चेकअप करना है, दैट इज़ इनफ। सो हम लोगों ने अराउंड 20,000 बेड्स उसको प्रिपेयर किया था। लेकिन अभी क्योंकि जो कोविड का जर्नी है वो स्लम से निकल कर दूसरे एरिया में फैल गया है, स्प्रेड जो है वो पैन सिटी हो गया है। इसको अब हम लोग को एक स्पेसिफिक एरिया में हम नहीं बोल सकते जैसा पहले था कि ये 5 एरिया में स्पेसिफिक है। अब ऐसा नहीं है, वो पैन सिटी स्प्रेड है और मैक्सिमम जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन प्रेफर कर रहे हैं। इसलिए अभी सीसीसी का थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम हुआ है। लेकिन यस, इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ हमें स्लम्स को कंटेन करने के लिए। कंटेनमेंट जोन जो डेंसली पॉपुलेटेड थे उनको कंटेन करने के लिए इसका हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट सीसीसी का हुआ है। बिल्कुल। जहाँ पे क्वारंटीन, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं था, वो एरियाज के लोगों के लिए दिस वाज अ गुड फैसिलिटी। वेरी ट्रू। और उससे हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर भी कम हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल।
अभी रिसेंटली न्यूज में आया है कि देयर आर सम हॉस्पिटल्स व्हिच आर ओवरचार्जिंग, बिल्स बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर पीएमसी हैज कैप्ड द नंबर की बिल्स के ऊपर देयर इज वेरिफिकेशन ड्राइव दैट इज going on to check the bill. So can you just tell us a bit more about the findings through that drive? 21 मई का गवर्नमेंट का जीआर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उन्होंने बिल्कुल रेट सब फिक्स करके रखा है। स्टिल 21 लाख का बिल आता है हमारे सामने, 15 लाख का आता है, 24 लाख का आता है। और आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि इस टाइप के बिल्स आ रहे हैं। पहले हम लोग केवल पोस्ट ऑडिट करते थे किसी की कंप्लेंट आने पर, लेकिन कंटिन्यूसली और रियली ये है ना एक्सेप्टेबल नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पेंडेमिक पीरियड में इस टाइप के बिल चार्ज कर रहे हैं। फूड चार्जेस, एडमिन चार्जेस 2.5 लाख, आई डोंट नो, 2.5 लाख एडमिन चार्जेस, फूड चार्जेस 50,000, आई डोंट नो। ठीक है, हो सकता है, मैं उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं डिटेल में नहीं जाना चाह रही हूँ, लेकिन स्टिल देन हम लोगों ने डिसाइड किया पीएमसी में कि हम लोग, और खास करके डिप्टी सीएम साहब ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि अब आप प्री ऑडिट करिए। उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा अगर किसी का भी बिल आता है, 1.5 लाख इज बेसिक बिल, कि ये Right, बिल है अगर आप 10 डेज वहाँ पे पेशेंट रहता है, 10 right. to 10 डेज, तो उसके बाद भी 1.5 लाख के ऊपर जितने भी बिल्स आ रहे हैं उसको हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। और अराउंड 40 लैक्स हम लोगों ने बिल डिडक्ट करे हैं। हॉस्पिटल ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ओवर चार्ज किया था। एंड पेंडेमिक से एक्ट है, हमें बहुत प्रेशर है मीडिया कि आप लोग केवल नोटिस दे रहे हैं, बिल कम करा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन पीएमसी का वो इंटेंशन नहीं है कि हम लोग हॉस्पिटल्स पे एक्शन लें। हमारा इंटेंशन है कि इमीडिएटली और इस पेंडेमिक पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा बेड अवेलेबल हो, लोगों को फैसिलिटीज़ मिले। लेकिन उसका दूसरा वो भी है पार्ट कि हॉस्पिटल्स को इतने बिल्स नहीं लगाने चाहिए। और बिल्कुल। शायद मुझे ये जो आपने प्लेटफॉर्म दिया उसका यूज़ करके मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ पेंडेमिक एक्ट का यूज़ करने की सिचुएशन ना आए। और हम लोग Very सब, true. ये 2 मंथ हो रहे आई थिंक सो, जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक का इशू है। वैक्सीन आने के बाद अलग इशू होगा कि वो कैसे, किसको, कितने टाइम में हम लोग देंगे। अभी तक भी पोलियो वैक्सीन चालू है। सो बराबर। वो अलग चीज़ है, वो अलग मैनेजमेंट होगा उसका। True, true. Right, and we are very grateful that PMC has taken interest in this, and जो लोगों को overcharge किया गया था, उनको help मिल रहा है इसके through, so we are really grateful for that. We do have a few more questions. आपके लिए कुछ और सवाल है हमारे पास. For that, I would like to invite Rupal Sancheti, Director of Helios, to continue our conversation. And उसके बाद we will take some audience questions. So, audience, if you have any questions, please start posting them into the comments. Rupal, over to you. You're on mute, Rupal. Okay, thank you, ma'am. Good evening again. It's been a nice conversation so far. मेरे पास भी थोड़े बहुत सवाल है और आ रहे हैं on WhatsApp also. So first thing I wanted to ask कि आपने dashboard के बारे में बताया जो beds का dashboard है, but I think you also have a dashboard to give you information on critical patients. So उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी. आई हील वेल एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उनको कौन सा मेडिकेशन दिया गया है, 8 आवर्स में उसको अपडेट किया जा रहा है। उससे हमें ये पता चलता है कि मॉडरेट पेशेंट को टाइमली जो इंटरवीन करना चाहिए था वो हुआ है कि नहीं हुआ है। मॉडरेट जो क्रिटिकल हुआ है उसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि कुछ तो सुपरविजन या मेडिसिन टाइम पर नहीं देने का वजह से ऐसा हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट लाइक वी आर फोकसिंग ऑन क्रिटिकल पेशेंट। हमारा मेन Wow. एम है डेथ रेट कम करना। हमें हॉस्पिटल के ऊपर कोई शक नहीं है कि हॉस्पिटल नहीं कर रहा है, टाइमली इंटरवीन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, ससून है, नायडू है, सोनवने हॉस्पिटल है, सीओईपी है, सारे हॉस्पिटल्स उसके अंदर फीड कर रहे हैं। उससे हमें एक बहुत अच्छा डाटा भी मिल रहा है कि क्रिटिकल पेशेंट्स को कौन सी मेडिसिन देने से वो मॉडरेट हो रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं, और कौन सी मेडिसिन देने से मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा।
या किस लेवल पर मेडिसिन देने से फ़ायदा हो रहा है। तो हम लोग उसमें बहुत सारी स्टडीज़ कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो 15 डेज़ के बाद वो नॉन कोविड हो जाते हैं। उसके बाद उनको नॉन कोविड आईसीयू, नॉन कोविड वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए, स्टिल वो कोविड वार्ड में है। तो बेड मैनेजमेंट प्लस क्रिटिकल पेशेंट्स का ओवरऑल सर्विलेंस के लिए हम लोगों ने ये आई हील वेल सॉफ्टवेयर यूज़ किया और उसको इंडिया लेवल पर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है कि वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। I think that's a great software and one of the premium and leading ones, because the most important thing is reducing the death rate. And if that means, I can understand you have a panel of many experts looking at live data, and you all are changing your administrative decisions accordingly. Having said that, and that's really heartwarming, but every day we hear that Pune and Pune district has one of the highest numbers, and you said that in your conversation पहले कि वो बड़ा challenge है, beds है, सब है, पर और beds लगेंगे क्योंकि Pune cases are increasing, district cases are increasing. Why is that, and what really worries you about this whole thing? मैंने पहले ही बताया कि मैनेजमेंट और हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन 30% है, 70% इट ऑल डिपेंड ऑन पुणे सिटीजन। और अभी आप देखेंगे हम लोगों ने रेशियो जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसका अंदर 30% आउटसाइड पुणे है, या Right. उन्होंने या रिलेटिव्स ऑफ पुणे सिटीजन्स है वो यहाँ आते हैं पुणे सिटीजन्स के, क्योंकि उनके एड्रेस दिखाते हैं और फिर वो एडमिशन लेते हैं तो वो पूना के कोटा में आते हैं। ऐसा भी बहुत सारे हैं, सांगली के हैं, शोलापुर के हैं, अहमदनगर के हैं, लेकिन उनका या तो सबका एक सेकंड हाउस होता ही है पूना में, तो वो बराबर यहाँ है. को एड्रेस दिखाते हैं, वो होते कहीं और के हैं। अराउंड 30% ऐसा है। That's a big लेकिन number. या दिस इज बिग नंबर, इज दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू 30% ऐसे हैं जो रिलेटिव्स हैं या अपने घर पर आए हैं, या क्योंकि पूना में अच्छी हेल्थ सर्विसेज है तो सब लोग प्रेफर बिल्कुल. करते हैं यहाँ आके एडमिट होना, और फिर वो एक बार होते तो उनके फैमिली मेम्बर्स का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एंड ऑल वो सब होता है, तो इससे पूना का नंबर भी बढ़ रहा है। दूसरा हम लोग टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बिग नंबर ऑफ टेस्टिंग। और अगेन यस, इट ऑल डिपेंड कि On क्या। the citizen, finally. यस, Absolutely. Absolutely. I wanted to ask you about, we've talked about the management, but in a corporate workplace, अगर काम पे कोई positive निकलता है, so what is your protocol or process that you are suggesting companies or organizations to do? फिजिकल डिस्टेंसिंग तो बेसिक है ही, और अभी गवर्नमेंट के जो रूल्स है ओपनिंग के उसके अंदर भी फिक्स है कि कितने कितने डिस्टेंस पे रहना है। पहले जो हम लोग स्ट्रिक्टली करते थे कि पूरा प्रीमाइसेस सील कर देना, वो अभी नहीं है। बराबर. पॉजिटिव आने के बाद हम लोग उसके एरिया, उनके जो क्लोज कांटेक्ट है उन लोगों से डिस्कस करते हैं। कॉर्पोरेट्स में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी प्राइवेट लैब्स बहुत बिग नंबर में सामने आ गई हैं, तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स तो खुद अपने लेवल पर सारी टेस्टिंग करा लेते हैं। सो वैसा So कोई there's no प्रॉब्लम set guideline कि आप बोल रहे हो कि अगर कॉर्पोरेट में या कहीं ऑफिस में एक निकलता है तो this is the process. ऑफिस बंद करो या नहीं, नहीं, वो हम लोग वैसा नहीं करते हैं। टेस्ट अभी करो या any organizations. ऑफिस बंद नहीं होता है, हम लोग उनके क्लोज कॉन्टैक्ट निकालते हैं, उनके जो 15-20 कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं और एडवाइस इशू करते हैं कि वो जो लेवल जिस ऑफिस में वो बैठते हैं उसको हम लोग 2 दिन के लिए सील करते हैं, जस्ट उसका चैम्बर, नॉट होल ऑफिस। Okay. So, Rubal, I'm listening to you and Saurabh, and I'm just do not envy your position. It's been one of your toughest jobs. You have no idea कि कल क्या होगा. You all are learning every day on the job. But I want to know what has been your biggest learning in these past 5 months, and what has your challenges been? लास्ट 5 मंथ में जो मैंने देखा है उसमें यही सबसे बड़ा है कि कोई सा भी पैंडेमिक आए, अगर सब साथ में, और पूना में ये एक सबसे अच्छा था कि यहाँ पे केवल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, इसके साथ सभी लोग थे। पूना के सारे एनजीओज, सारे कॉरपोरेट्स, सब डॉक्टर्स, सब एसोसिएशंस, और सारे जो अभी जैसे कि एग्जांपल है पीपीसीआर प्लेटफॉर्म है, पूना प्लेटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्स। Right. तो
इस टाइप से डिफरेंट एनजीओ साथ में आए और इतने सारे लोगों को साथ में लेकर इस टाइप का कोविड मैनेजमेंट करना, ये हम लोगों ने मतलब मैंने फर्स्ट टाइम किया है, क्योंकि स्कैरसिटी आया, उसके अंदर कोई भी ज़्यादा एनजीओज का रोल नहीं रहता, डॉक्टर्स का रोल नहीं रहता, सिविक सोसाइटी का रोल नहीं रहता। हम लोग जस्ट एडवाइजरी इशू कर देते हैं, गवर्नमेंट से एड आ जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड देन फिनिश। लेकिन इसके अंदर ऐसा था कि रोज डिफरेंट लर्निंग हो रहे थे और बहुत सारे ऐसे अपने ग्रुप से जो हमें ये बता रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोग वहाँ बिल्कुल पे मतलब टिपिकल पुणेकरी स्टाईलमध्ये तुम्ही तिथे चुकलेले आहे, तुम्हाला ते करणे गरजेचे आहे। तो वो भी चालू रहा है, डेली हमें नया एक मैसेज आता था कि आम्ही कुठे चुकतो आहे। तो उसके अंदर भी हम lots of लोग advisors. यस 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 तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि इसमें केवल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था या कोई पॉलिटिकल बॉडी अकेली नहीं थी या गवर्नमेंट अकेला नहीं था, इसमें ऑल टुगेदर सब एक साथ आए थे। And that has worked very, very well together. Then I must appreciate that, ma'am. It's been really good. On to my next question, which I know the audience wants to know, is about the vaccine. There are rumors about various dates, but there are rumors that already vaccine hai and key people have already got it. So can you just throw some light, which is your trustworthy information, because we are just hearing rumors. अभी आपने आपके क्वेश्चन में जवाब दे दिया, ये रूमर्स है सब। सो रूमर्स का तो कोई बेस नहीं होता है, तो उसके ऊपर और आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम नॉट लाइक what I can say, I'm not appropriate authority to declare the date and time and when vaccine will come. So I can't say on that. And you already replied it's rumor. So Because every day people want to know कब आएगा, आ चुका है, हमको कब मिलेगा. But that's, I appreciate that. That's okay. I want to know, what is your biggest hope now that you are at this position with enough beds? What is it that makes you hopeful about containing the whole virus? to contain virus, uh, live with virus, we have to change our working style, change our day-to-day routine and new normals. So that is the we have to do that only. We have to live with it. There is no That's other. true. There is And no with the other. new normal, ma'am, everything is going to slowly open up. How do you plan to, or how does the administration plan to control the increase in the cases? We have to open up slowly, but then there is a risk of increase of cases. What is your view, and how are you going to manage that? इसके अंदर जैसे भी कल का गाइडलाइन आया है कि 21 सितंबर के बाद हम लोग सारे बड़े बड़े फंक्शंस अलाउड करेंगे, 100 की Correct. आएगी, वो उसको इम्प्लीमेंट करना एक पार्ट है। लेकिन अभी मैं आपको लास्ट मंथ का एग्जांपल देती हूँ। पूना के अंदर एक बहुत बड़ी मैरिज हुई जिसके अंदर 50% अलाउड थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, लड़की वालों की तरफ से 50 करे, लड़के वालों की तरफ से 50 करे, ननिहाल की तरफ से 50 करे, ऐसे 200 लोगों को इकट्ठा करा। ऐसे करने के बाद तो इंडिया में क्या कहीं पर भी कोई कंटेन नहीं कर सकता इस वायरस को। बिल्कुल. तो लोग, मैं बार बार उसी पॉइंट पे आ जा रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 6 मंथ से वही देख रही हूँ कि हम लोगों ने कितने भी ऑर्डर्स निकाले स्ट्रिक्टली कि हम लोग 188 में एक्शन लेंगे, हम लोग आपके ऊपर 500 का पनिशमेंट करेंगे, आपने मास्क नहीं पहना तो ये करेंगे, 188 में आपको जेल में पहुंचा देंगे। लेकिन वो सब यूजलेस है आई थिंक। मतलब जब तक आप खुद अपने मन से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको कंटेन करना बहुत टफ है। एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर निकलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप जाइए। और वर्किंग के लिए आप जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यूजलेस जो आप लोग रोम अराउंड हमारे लोग करते हैं, उसकी वजह से इशू है। That's very true. Any kind of inclination on how the education system will open up? What about the schools? What about the education, other colleges and exams that every day people are talking about? I think online education system is good as of now. I Right. don't think so 30 सितंबर तक तो अभी हम लोग कुछ सोच भी रहे हैं, एंड उसके बाद भी अगर शुरू भी होता है तो कॉलेजेस वगैरह ही होंगे।
मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को प्राइमरी, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, इट्स नॉट ऑफिशियल व्यू, कि Sure. प्राइमरी एजुकेशन के लिए अभी ये प्रॉपर टाइम है। जब तक वैक्सीन ना आए और जब तक अच्छे से सबको डोज ना मिले तब तक हम लोगों को, मुझे नहीं लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। फॉर माई सन आई कैन से इट्स नॉट माई Sure. ऑफिशियल, क्योंकि Sure, but that's, I think, an important view to be considered. Thank you so much. I know that there are a few questions coming in from the audience, so I want to hand it over to Saurabh. Really nice talking to you, and we hope to continue our conversations and do something together, being from the healthcare industry. Thank you, ma'am. Thank you. Saurabh, over to you. Thank you so much, Rupal, for joining us and it was a very insightful conversation. All right, ma'am. So, हमें कुछ सवाल आ रहे. I know that you're short on time, so I'll just quickly take one or two questions. So, one question we have is, do we have plasma bank in Pune? इसके लिए हम लोगों ने प्रोसेस शुरू कर दिया है प्लाज्मा बैंक के लिए। अभी ससून और नवले हॉस्पिटल में हम लोगों का प्लाज्मा थेरेपी चालू है, और प्लाज्मा बैंक के लिए हम लोगों ने प्रोसेस शुरू करा है। डिविजनल कमिश्नर सर के लेवल पर एक वेबसाइट लॉन्च हुई है, और हम लोग उसके अंदर सारे जो जिनको रिक्वेस्ट है करना है वो हम लोगों ने शुरू कर दिया है। बीजीएस का यूज़ करके हम लोग बीजीएस की पूरी टीम को प्लाज्मा के लिए जो आईसी करना है उसके लिए हम लोगों ने इनिशिएट कर दिया है, और शॉर्टली हमारे पास ये अवेलेबल। Okay. Thank you so much. And that's all. There are more questions, but काफी सारे सवालों के जवाब आपने already conversation में दे दिए हैं. So जिनके सवाल है, they can just go back and see the interview and they will get the answers. So thank you so much, ma'am, for taking the time out and joining us today. एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा एंगल होता है डे टू डे लाइफ में, या नॉर्मली हमें पता नहीं चलता कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या ड्यूटीज है एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे निभानी पड़ती है. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट इनसाइट इन योर डे टू डे जॉब, जो हमें कभी नहीं मिलता. थैंक यू सौरभ, एंड थैंक यू रूप. Yes, all right. Thank you so much for joining us. And जैसे आपने काफी बार बोला है, I would like to urge the audience और जो भी ये वीडियो देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, हॉस्पिटल्स अपना काम कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं. We all have a responsibility as citizens of this city, of this country, to make sure that कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें by not going out unnecessarily. I guess on that note, thank you so much once again. Thanks a lot. And to all of us, all the people watching, thank you so much for joining us. We will come back with another episode in the Frontliner series next Sunday. See you then.